Okay, good afternoon, students. Good afternoon, sir. Good Good afternoon. afternoon. Good afternoon, all of you. Okay, just tell me what we are doing, what we've done in the last class, what we have to do. Okay. Just tell me. Manufacturing industry. Manufacturing industries. Okay. Just wait a minute. Manufacturing industries करा था उसमें just हमने क्या कितना like how much we had done? Manufacturing industries में how much we have done? We have done with the type of industries. No, sir. Just okay. Just wait a minute. Okay, so just can you just show me which topic? Agriculture पढ़ना है ना agriculture? Yes, got it. ठीक है. Agriculture Indian scenario पढ़ना है. Industrial का sector का the combination of both the things. That's it. Okay. So as we know, like there are how does the agriculture importance of manufacturing industries करा था हमने. So how does actually help us? Because there will be certain factors out there. Okay. Right. So now agriculture and industrial sector. Okay. अब देखो दोनों कैसे कनेक्टेड है. हाउ डज एग्रीकल्चर एंड इंडस्ट्रियल सेक्टर. ओके, कैन यू जस्ट टेल मी कि इज देयर एनी काइंड ऑफ लाइक कैन इट बी पार्टेड अवे और इट विल बी लाइक ये अलग कर सकते हैं हम इसको या एक ही में लाइक इट इज एक्सक्लूसिव और इट इज इंक्लूसिव ऑफ दिस, मतलब दोनों एक साथ काम करते हैं अलग अलग काम करते हैं बेसिकली. जस्ट टेल मी. सर एक ही साथ कर. हाँ, बेसिकली इट इज नॉट एक्सक्लूसिव ऑफ ईच अदर, मतलब अलग अलग नहीं है ये. ओके, इट इज इट वर्क्स टुगेदर. Okay, it works together in regard of like basically it works as a more hand in hand. एक साथ बोलते हैं ना, हाथ में हाथ, एक का साथ हाथ बताना, तो दोनों एक तरीके से होते हैं क्योंकि for the industrial sector agriculture produces as a you can say produces a thing called raw products, है ना. raw products को करता है just. तो we can say लिख लिया आपने, just write it down this. Done. लिखोगे done. Yes, tell me. Okay, from everyone. So now, if I would say like this is an industry, okay, this is an industry, and like whatever अभी कैसे भी industry होते हैं, and this is a farm product like sugar cane, all these things. So this is actually providing a raw material to this or not, and this industry actually providing the machinery or the tools. Like if I would say industry से को क्या मिल रहा है machinery. अभी हमें like irrigation facilities की जो motors है वो सब कहाँ से मिलेगी? From where we got? From the industries that जो बना रहे irrigation के लिए pumps चाहिए, machineries चाहिए. So and by that what will going to happen? It will going to result in increased productivity. Productivity बढ़ेगी, the yield of the and made it increase the productivity or yield. I can write that thing also. Is it? दोनों साथ में बोलते हैं ना, एक साथ एक दोनों चलते हैं कि ये प्रॉपर्टी ये शुगर केन मान लो, दिस इज शुगर केन बेसिकली, and this is actually providing a raw material to a factory or the industry. Okay. So now this factory is giving away machineries दे रहे हैं production के लिए, तो basically इससे क्या result होता है? It actually increase the yield or increase the production. While okay, got the point? Aditya, I am not able to hear, like you are not able to hear me. Is it okay now? Yes, sir. आप clear है. There is a rain is बारिश आ रही है ना due to that thing. Okay. So now
अब ग्लोबलाइजेशन, इसमें भी अगर वर्ड अभी हमने उसमें भी पढ़ा था ना ग्लोबलाइजेशन में, लाइक इन एग्रीकल्चर लास्ट टॉपिक ग्लोबलाइजेशन था, इसमें भी ग्लोबलाइजेशन है बेसिकली, ठीक है। ठीक है, तो व्हाट इज द ग्लोबलाइजेशन हियर, लाइक इट इज बेसिकली सेल्फ सफिशिएंट, क्योंकि इंडस्ट्रीज को वी हैव टू बी लाइक अ सेल्फ सफिशिएंट। ओके, उससे बेटर है आज हम स्टार्ट करते हैं इंडस्ट्रियल लोकेशन के लिए व्हाट आर द थिंग दैट वी हैव कंसीडर्ड। ओके, स्टार्ट विद द टॉपिक कॉल्ड इंडस्ट्रियल लोकेशन। Industrial location. Okay, so what are the factors, or you can say what are the things that we consider for the industrial location कि industry setup करनी है, ठीक है। अब आपसे कुछ questions भी होंगे directly indirectly way, you just have to say the answer also। industrial setup के लिए first it is influenced by what, it is influenced by many factors which is like, अब इसका सब heads आप लिख लो, availability of raw material, सबसे first of all important तो यही है, अवेलेबिलिटी ऑफ रॉ मटेरियल, कि भाई सामान जो रॉ मटेरियल आपको चाहिए वो मिलेगा कहाँ से, कैसे मिलेगा, ठीक है। सेकंड वन वी कैन से द लेबर, नॉट सेकंड वन लिस्ट में है तो ये ऊपर नीचे कुछ भी हो सकता है, ठीक है। द कैपिटल, कैपिटल न्यू दिल्ली, यहाँ पे कैपिटल मींस क्या है, न्यू दिल्ली या किसी और देश की कैपिटल की बात हो रही है। These are the various factors on which the industry. Okay, let's take an example. Okay, uh, if you want to take an example, कि आपको एक चीज सेटअप करनी है, आप लोग 10th में हो, ठीक है। After you just get over with the 10th class, किसी के माइंड में तो बिजनेस करने का कुछ ओपन करना है, तो फर्स्ट यू विल गोइंग टू व्हाट, लाइक आपके माइंड में सब कुछ आएगा कि मुझे क्या क्या चीजों की जरूरत पड़ेगी। So these are the basic things that will going to these are basic factors है। और सबसे पहला important factor क्या होना चाहिए for doing a business, capital means money। Okay, capital means money, so it is one of the things that you need to have। मनी वगैरह भी तो सोचोगे चलो बिजनेस करते हैं, इफ यू डोंट हैव मनी एनफ यू विल गोइंग टू बोरो, लोन लोगे, कुछ करो जब भी बिजनेस स्टार्ट हो, एंड देन यू विल स्टार्ट फाइंडिंग आउट कि मान लो यू स्टार्टेड सेइंग कि मैं चलो मार्कर बनाना स्टार्ट करते हैं, ठीक है। मार्कर की फैक्ट्री डाल बन ऐसे बोलते हैं, मार्कर की फैक्ट्री ओपन करते हैं। अब फॉर दिस मार्कर यू नीड अ व्हाट, यू नीड अ रॉ मटेरियल, रॉ मटेरियल की जरूरत होगी। और रॉ मटेरियल में क्या चीज चाहिए, बेसिकली क्या पता, मार्कर एक ऐसा है कि असेंबलिंग करने वाला आपने रख लिया कि ये जो व्हाइट पोर्शन या अलग अलग जगह से आ रही है, ब्लैक पोर्शन इसकी इन कहीं और से आ रही है, और आपका कैप कैप है बेसिकली, दिस इज कमिंग फ्रॉम, वो आपने असेंबलिंग यूनिट लगा लिया। जैसे अभी बहुत सी जगह पे मोबाइल असेंबल होते हैं, तो ऐसा काइंड ऑफ थिंग इज देयर। ओके, तो आपको क्या चाहिए, काम का, so you will going to find the area where labor is cheap, जहाँ पे labor सस्ती हो, higher है ना, is it? Just tell me। Yes, sir. And electricity, जब बिजली ही नहीं है, how can you start like any industry, क्योंकि किसी ना किसी को कुछ ना कुछ तो आपको इलेक्ट्रिसिटी चाहिए होगी ना किसी ना वे में, like if you want to make a like इसमें भी इंडस्ट्री, आप कहोगे सर ये तो पावर प्लांट, मतलब इसमें तो हम सिर्फ असेंबल कर रहे हैं, जोड़ रहे हैं, लेकिन आपको फैक्ट्री में इलेक्ट्रिसिटी चाहिए होगी, फैक्ट्री में या जहाँ पर ऑफिस है वहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी चाहिए, पावर प्लांट। और मेजर रोल प्लेज आल्सो गवर्नमेंट पॉलिसीज। गवर्नमेंट पॉलिसीज मींस गवर्नमेंट की कुछ पॉलिसीज होती है ऑन व्हिच वी हैव टू according to government policy we can open that thing। अभी आपके सबके घर में कुछ ना कुछ दवाइयाँ लोग खाते हैं, ठीक है। just take an example, all of the most the see after the class check it out in a, like घर में जितनी दवाई होंगे ना, जो भी होगी उसमें ना कहीं एक देखना कि where the manufacturing unit उनका कहाँ पे है। जैसे check it out after the class where the manufacturing, where the all the medicines are being manufactured। it is used to be like कोई states कौन कौन से आएंगे उसमें आपको फर्स्ट ऑफ ऑल सिक्किम मिलेगा,
SKM सिक्किम, ओके, महाराष्ट्र, हिमाचल प्रदेश में सोलन होगा, और एक उत्तराखंड में आपका there are 2-3 states out there, okay, you can कर देते हैं उसको. So just check it out the list कि आपके जो दवाइयों के फैक्ट्रीज के पीछे देखना कि वो मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स कहाँ पे. So why all this kind of cosmetic medicinal things are being made in this area, because there are government policies out there. आपको पता ना, like जैसे आप बिग बाजार में जाओ, you just go in a big bazaar, okay, so you that big bazaar any like there are lots of bazaar, like there are dispensers out there, बहुत सारे मॉल में जाओगे तो all of them the different सब बेच तो सब एक ही रहे, ठीक है, बेच तो सब एक ही चीज रहे, लेकिन they will going to give you the offer. So same the government also give us the offers also. जैसे this all the why is in इन states में सारी केमिकल वो फार्मास्यूटिकल कंपनीज क्यों हैं, फार्मास्यूटिकल फैक्ट्रीज इंडस्ट्री क्यों, बिकॉज यहाँ पे किसी न किसी गवर्नमेंट ने उनको कुछ इंसेंटिव्स दिए होंगे, कुछ सब्सिडीज दी होंगी, कुछ ना कुछ तो दिया होगा, दे हैव गिवन समथिंग इन दैट वे इट इज बीन देयर, इज इट. वो सारी कंपनी वहाँ पे क्यों है, देखो अभी एक कंपनी मैनकाइंड, उसकी प्रोडक्शन मैनकाइंड फार्मा का जो है वो कहाँ पे है, बेसिकली दैट इज इन if I will to see you also right now, manufacturing जम्मू like I have some medicine, तो बेसिकली इसमें क्या है, इट इज ऑफ जम्मू में बन रही है, ठीक है. तो जम्मू और कश्मीर में भी बेसिकली बनती है, तो वहाँ पे गवर्नमेंट पॉलिसीज कुछ रोल प्ले करते हैं, लाइक इन दिल्ली ऑल्सो. अभी आपने सुना होगा कि अभी आफ्टर द कोरोना द ऑल द बिजनेस मीटिंग्स एंड ऑल द थिंग्स इज हैपनिंग, लाइक वी टेक एन एग्जांपल उत्तर प्रदेश, ओके, उत्तर प्रदेश का एग्जांपल लेते हैं. जैसे उत्तर प्रदेश में मिस्टर योगी आदित्यनाथ ने जो अभी करा था चीफ मिनिस्टर की एक कॉन्क्लेव रखा है, बेसिकली एक सेमिनार रखा था कि सारे बिजनेसमैन आके काम करें, मतलब आके सर अपना इन्वेस्टमेंट करो, हम आपको ये डिस्काउंट देंगे, वो देंगे. हैवी दिस एंड दैट थिंग कभी सुना आपने, ऐसे गवर्नमेंट्स भी करती हैं. दिल्ली गवर्नमेंट यूज्ड टू होस्ट अ पार्टी, दिल्ली गवर्नमेंट पार्टी होस्ट करती है होटल में कि आओ सारे बिजनेस यहाँ पे ओपन करो. हैव यू हर्ड? जस्ट दिल्ली? No, sir. ये सुना, ठीक है. बेसिकली गवर्नमेंट आपको ना बहुत गवर्नमेंट की पॉलिसीज होती है कि इस एरिया में आप यहाँ इस टाइप के फैक्ट्री खोल सकते हो, इस एरिया में नहीं खोल सकते. लाइक आपको रीड द न्यूज़पेपर सो यू कैन गेट द थिंग, लाइक इंडस्ट्री तो हमारी वो भी होती है, रियल एस्टेट जहाँ प्रॉपर्टीज बनाई जाती है, बिल्डिंग्स बनाई जाती है, वो भी तो एक तरह की इंडस्ट्री है, ठीक है. वो इंडस्ट्री तो नहीं है, एक सेक्टर है एक्चुअली, वो एक दैट इज नॉट, बट फॉर दैट आल्सो यू नीड अ गवर्नमेंट पॉलिसीज एंड रेगुलेशंस, रूल्स एंड रेगुलेशंस होंगे कुछ ना कुछ. तो गुड़गांव इज अ काइंड ऑफ अ एरिया, जस्ट टेक एन एग्जांपल फ्रॉम आसपास से एग्जांपल लेते हैं. तो गुड़गांव इज अ काइंड ऑफ एरिया where no like it is a very fragile area basically, but still all illegal kind of construction has been going on, is coming up on daily basis. नई नई जगह पे यहाँ पे एग्रीकल्चर लैंड को हटा के बेसिकली वहाँ पे नई नई बिल्डिंग ओपन हो जाती है. यू कैन गेट टू नो इफ यू नो द थिंग्स लाइक फ्रॉम योर फादर मदर, यू कैन गेट टू नो कि यहाँ पे पहले क्या हुआ करता था, अब क्या हो गया. तो बेसिकली गवर्नमेंट पॉलिसीज कुछ है वहाँ पे, कोई मानता है, जो मान के काम करता है दे सस्टेन देयर बिजनेस, और जिसको नहीं करता, अभी कितने सारे फार्म हाउसेज अभी तोड़ दिए गए हैं बेसिकली, ठीक है. they have the all the construction has been removed. So there are this is all the things that for set up an industry or the factory or like office भी, तो आपको सब कुछ क्या चाहिए होगा बेसिकली. लेबर मीन अगर मान लीजिए we say as a like if you want to open a school, ठीक है, आप स्कूल ओपन करना चाहते हो, so will you want like do you want to open a school in that we can say that area, like जैसे नाथुपुर में अगेन इफ यू वांट टू टेक एन एग्जांपल, अगर नाथुपुर में एक और स्कूल खोलना, अगर आपको आइडिया आई जो एक स्कूल ओपन करते हैं, विल यू गोइंग टू ओपन दैट स्कूल इन नाथुपुर, यस और नो? यस, एनी आंसर, एनी कमेंट्स, टेल मी. Kashish, what you're saying, like this is a state name, SKM ये सब मैंने लिखा हुआ है. अच्छा बच्चे बताओ फिर what I am actually saying to you, like if you like आप में से कोई भी like if anyone wants to open a school in the Nathupur area, will you going to open that area school in that area, yes or no? Is it I'm audible to you, or is it I'm audible to all? Yes, tell me.
Okay, you are not able to. Okay, I'm just joining again. That's the only thing I can do. Yeah, I'm just trying to get it done. But okay, अभी ठीक है? Is it okay now? It is just because the rain is coming over there, and due to which it is happening. Okay. Okay, so basically what these are the basically in the factors for influencing which influence to set up an industry. ठीक है, कोई भी अब इंडस्ट्री लगाओगे तो just take an example of पेपर कॉपी इंडस्ट्री. ठीक है, पेपर कॉपी इंडस्ट्री मतलब स्टेशनरी इंडस्ट्री आप लगाते हो, सिर्फ कॉपी बनाने वाली कॉपी जो इंडस्ट्री होती है ना, that industry is started setting up. Okay. Okay, so आपने अगर इंडस्ट्री लगाई है, so what happened? You need a thing. सबसे पहले आपको लैंड चाहिए होगी. You need a land to like set up industry. You need money for capital. Like what? You need money. You need labor also. इलेक्ट्रिसिटी तो चाहिए होगी क्योंकि पेपर कटिंग होगा तब उसमें कुछ मशीन्स लगेंगी. गवर्नमेंट पहले से वहाँ पे गवर्नमेंट आपको अलाउ करेगी कि नहीं करेगी, अगर करते अगर गवर्नमेंट पॉलिसी के अकॉर्डिंग करोगे. एंड व्हाट इज द कॉस्ट, टोटल कॉस्ट कितना पैसा लगेगा. दिस इज द थिंग. इज इट? Yes, sir. Okay, so this all factors are basically like in our mind, basically all these factors comes or not. All this अगर आपको क्वेश्चन आता है, जैसे if a question comes, what are the can be the factors for setting up an industry, or what can be the factor for locating an industry. So you should write the points. Okay, जो अभी मैंने आपको दिए थे 4 to 5 points, and explain it in within 1 to 2 lines. It can come in like a 3-mark question. Okay, got it? अब industrial location Yes, sir. क्या होता है? इंडस्ट्री जैसे चलो इंडस्ट्री सेटअप हो गई, आपने सब बहुत बढ़िया से कर दिया. So then next point would be industry or you can say industrial work or industry कर लो. ठीक है, industry and urbanization. मैं दिख रहा urbanization मतलब शहरीकरण जिसे बोलते हैं. This is like I'm giving an example also. Goes hand in hand, मतलब एक साथ चलते हैं. कैसे चलते हैं? Just take an example of जमशेदपुर. Okay, जमशेदपुर. Okay, where it is? जमशेदपुर कहाँ पे है? मूवी बनी है अभी तो इस पे. Just tell me जमशेदपुर is where? सर झारखंड. झारखंड में. और व्हाट इज इट? जमशेदपुर इतना फेमस क्यों है? अभी कौन सी मूवी आई जमशेदपुर पे? अभी आपने देखी भी होगी एक मूवी, हैव यू सीन दैट दिल बेचारा मूवी? वो भी शायद जमशेदपुर बेसिस पे वो. ठीक है, जमशेदपुर इज इन झारखंड. ओके, इट इज झारखंड. So basically what is it actually? It is an industrial city. Basically जमशेदपुर है एक इंडस्ट्रियल सिटी है. और वो बनी क्या? हाउ डज इट एक्चुअली हैपन? It actually happened. It is a like you can say it is iron and steel industry. जमशेदपुर क्या है? हमारा आयरन स्टील इंडस्ट्री है. वहाँ पे सारी की सारी बेसिकली किसकी है? इट इज ऑफ टाटा. बेसिकली जो जमशेदपुर जो शहर है ना, वो टाटा का ही है. It is by not, it is like land is not owned by the Tata, but basically all the facility, all the things, all the urbanization work is being done by the Tata there. उन्होंने अपना एक नया शहर बनाया जिसको उन्होंने कहा जमशेदपुर. जमशेदपुर क्यों नाम रखा? बिकॉज ऑफ द जमशेद जी JRD टाटा जिसने स्टार्टअप करा था ऑल दिस थिंग्स ऑन विच. पहले तो बहुत छोटा सा ऐसा कोई गांव का नाम है वो. पहले उसका नाम इट स्टार्ट विद लेटर S. ओके, तो all these things as goes on like goes hand in hand. जैसे शहर और इंडस्ट्री सेटअप होगी. लाइक आई गिव एन एग्जांपल. एक इंडस्ट्री सेटअप होगी. आपको मैंने जेवर एयरपोर्ट का एग्जांपल दिया था. टेल मी
You know there's an airport is going to come up in a Jewar airport, ठीक है? बोला था शायद मैंने last time, if I'm not wrong. Yes, sir. बोला था. बोला था तो अराउंडिंग दिस एरिया, मतलब जो भी जैसे भी एरिया में एयरपोर्ट बनता है, चलो रेक्टेंगल में मोस्टली बनते हैं, और जो सराउंडिंग एरियाज होंगे उनको दे विल गोइंग टू गेट थिंग्स कि हमको यहाँ पे भी डेवलपमेंट होगा, दिस एरिया आल्सो गेट डेवलपमेंट. इफ यू हैव विजिटेड द एरिया इन दिल्ली अराउंड एयरपोर्ट, जो आईजीआई एयरपोर्ट है ना, इंदिरा गांधी एयरपोर्ट, गुड़गांव में इसका डेवलपमेंट क्यों हुआ? बिकॉज ऑफ एयरपोर्ट आल्सो. गुड़गांव में इसका डेवलपमेंट हुआ बिकॉज डायरेक्ट आपने कब इतनी सारी गुड़गांव में इतनी सारी कंपनी क्यों ऊपर हो गई? Why it is called cyber city or cyber hub? Because it is nearby to the IGI airport. IGI airport के आसपास में है, दिल्ली के आसपास में, दोनों चीज का बेनिफिट मिला. वहां से कोई क्लाइंट आता है या जो whatever the people are coming from the direct flight, they can just come to that Gurgaon within just 10 minutes. 10 मिनट के अंदर आप गुड़गांव में पहुंच जाओगे. It is so nearby. So same will happen with this thing also. यहाँ पे जब एयरपोर्ट बनेगा NIAL करके बताया था मैंने आपको, अभी तो जेवर एयरपोर्ट बोल, तो सराउंडिंग एरिया विल गोइंग टू हैव दिस थिंग, वो भी दे विल आल्सो डेवलप दैट. जस्ट टेक एन एग्जांपल, दिल्ली में अगर इफ यू हैव विजिटेड द दिल्ली थिंग, आईजीआई के आई जस्ट हियर ऑन दिस लाइक देयर इज अ रोड, जो एक आपका पूरा गुड़गांव वाला रोड से दैट इट इज बेसिकली जयपुर नेशनल जयपुर हाईवे. इस साइड में आपको पूरा आईजीआई है, ठीक है. हियर वी हैव आईजीआई, इन दिल्ली वी हैव इधर महिपालपुर है, ठीक है, महिपालपुर, ठीक है, महिपालपुर है, यहाँ पर चौकरी है, यहाँ पे और भी कुछ थिंग्स आर देयर, लाइक अलग अलग जगह है. तो महिपालपुर व्हाई इट इज एक्चुअली एक्सपेंडेड इन अ होटल इंडस्ट्री, पूरा का पूरा होटल इंडस्ट्री यहाँ पे क्यों है? क्योंकि बिकॉज ऑफ द न्यू सर्विसेज स्टार्टेड, वहाँ पे एक इंडस्ट्री सेटअप हुई. यहाँ पे क्या इंडस्ट्री सेटअप हुई थी? इट इज नोन एज एविएशन इंडस्ट्री. इज इट एविएशन इंडस्ट्री सेटअप हुई यहाँ पे जब एक एयरपोर्ट बनाते एविएशन इंडस्ट्री सेटअप. और आईजीआई के अंदर देयर आर मेनी इंस्टीट्यूट which gives you like training देते हैं, मतलब you can go there and get the training and you can become a pilot or like air hostess or cabin crew. Okay, so basically यहाँ पे भी small small, और इसके पीछे पूरा का पूरा द्वारका आता है, ठीक है. before like ये तो नहीं आगे आगे होगा, द्वारका है यहाँ पे, there are the things out there. Okay, so this is the thing that industrial and urbanization goes hand in hand. जैसे एक इंडस्ट्री बढ़ेगी, if the industry started getting bigger, अभी देखो इन आईजीआई के पास स्पेस नहीं बचा बिकॉज इधर बहुत बड़ा एरिया है, इट इज अराउंड 10 किलोमीटर एरिया, 10 to 12 किलोमीटर एरिया में बहुत बड़ा एरिया, पर ये के पीछे जमीन और नहीं ले सकते. सो दैट्स व्हाई दे आर एक्चुअली हैव टू मेक अनदर एयरपोर्ट जस्ट दिल्ली के आसपास एक और एयरपोर्ट की जरूरत पड़ गई इनको बनाना, क्योंकि ये इतना ट्रैफिक नहीं, लाइक दिस एयरपोर्ट कैन बेयर द ट्रैफिक. ओके, अब if the urbanization started, so city will be going to provide what? City will going to provide market, क्योंकि लोग रहेंगे तो मार्केट चाहिए, एंड सर्विसेज, एजुकेशन. अब स्कूल भी खुलेंगे, जो कोई काम करने आ रहा है उसको स्कूल भी चाहिए, बैंक भी चाहिए, सब कुछ चाहिए. so there will be like agglomeration of economics, तो सब कुछ मिक्स चल रहा होगा यहाँ पे. agglomeration of basically agglomeration of economics, सब कुछ मिक्स हो रहा होगा यहाँ पे. like every economic activity starts coming over this area where there are new industry will going to start. Okay, अब अपने किसी भी एरिया को ले सकते हो, जैसा अभी ये क्या नाम है इसका, जो अभी बन रहा है राम जन्मभूमि पे, जो राम मंदिर बना रहे हैं, टेक एन एग्जांपल ऑफ दिस एरिया आल्सो. अब यहाँ पे क्या, इसको क्या एक पिलग्रिमेज टाइप एरिया बनाएंगे पूरा पूरा, ठीक है. पिलग्रिमेज टाइप एरिया बनाएंगे, क्या होगा, ऑल द सराउंडिंग एरिया विल गोइंग टू कैटर द थिंग. वहाँ पे होटल्स बनेंगे, वहाँ पे लॉजेस बनेंगे, स्मॉल होटल ओयो के होटल्स ओपन होने लग जाएंगे, और क्या मतलब अभी होते भी हो, ठीक है. तो बेसिकली क्या धीरे धीरे करके वो पिलग्रिमेज एरिया बनेगा, एंड देन द सराउंडिंग एरिया विल आल्सो गेट स्टार्टेड डेवलपिंग. एक ने बनाया और इंडस्ट्रियल एरिया स्टार्टेड डेवलपिंग. व्हाट द पॉइंट? Yes, sir. श्योर ऑल ऑफ यू? तो नहीं यार, पूछ भी लो अगर, इफ यू आर नॉट एबल टू गेट द थिंग आल्सो अपार्ट फ्रॉम द वॉइस दैट आई कैन डे. Kashish, what you have written, nail, and I didn't get the nail and what. Okay, nail क्या पूछ रहे हो आप बच्चे? Cities, I'm saying that whenever there is a, okay, nail, NIAL पूछ रहे हो आप. NIL क्या है? NIL तो अभी जो एयरपोर्ट बनेगा ना, उसका नाम है शायद ये नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट अथॉरिटी, यही है, ठीक है.
ये इंटरनेशनल एयरपोर्ट, इंटरनेशनल एयरपोर्ट यही नाम रखा जाएगा उस एयरपोर्ट का। जैसे दिल्ली में भी DIL करके है, दिल्ली इंटरनेशनल एयरपोर्ट लिमिटेड, IGI करके, डायल है इधर, दिल्ली इंडिया इंटरनेशनल इंडिया या ऐसे कुछ करके डायल। दिस इज द नेम ऑफ अ, don't consider this thing, this is only for example. Okay, so just basically the thing is that when there is this industry started, like जैसे जैसे एक इंडस्ट्री सेटअप होगी, ठीक है, आपने take an example of what we can say, take an example, आपके कॉर्नर पे जो क्रॉस रोड पे जो एक प्लॉट है, देयर इज अ बिल्डिंग आउट देयर, अभी शायद हम इतने दिन से नहीं करा, वी डोंट नो फ्रॉम लास्ट 6 मंथ्स, तो वहां पे बिल्डिंग ओपन हो गई होगी शायद, जस्ट इसे क्रॉस रोड के कॉर्नर पे बिल्डिंग ओपन हो गई होगी। हाँ है ना, देखा होगा किसी ने तो, यस इज इट, वो कंस्ट्रक्शन चल रहा है वहाँ पे, हाँ ना, कुछ बताओ फिर, देन आई विल गो टू मेक अ स्टोरी फ्रॉम दैट थिंग। यस ओके, सर पता नहीं। पता नहीं, ठीक है, आप नहीं जाते साइड में। सो बेसिकली व्हाट हैपन, ड्यू टू विच, उसके कारण क्या होगा वहाँ पे जो ना, आई डोंट नो वो किस चीज की बिल्डिंग बन रही है बेसिकली, मे बी इट इज विल बी रेंटेड आउट, रेंट होगा, और नीचे उनको गार्ड चाहिए होंगे, मतलब दे नीड अ सिक्योरिटी गार्ड आल्सो, दे नीड अ पर्सन आउट देयर जो उनको हाउसकीपिंग के लिए चाहिए होगा। अब जो लोग रहेंगे वहाँ पे, दे नीड मेड एंड ऑल द पर्सन दे नीड, अगर वो फ्लैट सिस्टम बना है तो हमें मेड्स भी चाहिए होंगे, वॉचमैन भी चाहिए होंगे, एंड सर्विस प्रोवाइडर भी चाहिए होगा, ठीक है। सो द सराउंडिंग एरिया पीपल विल गोइंग टू गेट अ चांस ऑफ एम्प्लॉयमेंट, आसपास के जो लोग हैं उनको एम्प्लॉयमेंट का चांस मिलेगा, इजंट। सो बेसिकली इंडस्ट्री प्रोवाइड एम्प्लॉयमेंट साइमल्टेनियसली, एक इंडस्ट्री धीरे धीरे करके एक एम्प्लॉयमेंट भी जनरेट करती है, ठीक है। देखो व्हाई आई एम टेलिंग यू दिस काइंड ऑफ एग्जांपल, बिकॉज़ इन अ बोर्ड देयर आर काइंड ऑफ क्वेश्चंस कम व्हिच इज काइंड ऑफ ट्रिकी, कुछ ऐसा पूछ लेंगे कि आपको समझ में नहीं आया, बट if you know the whole story, then you can write it by yourself also. खुद से बना पाओगे, that will be gonna be better thing. Okay. अब तो इंडस्ट्री की बात अगर हम इंडस्ट्री की एक और बात कैसे छोड़ सकते हैं कि इंडिपेंडेंस बिफोर इंडिपेंडेंस, बट व्हाट यूज्ड टू बी देयर प्री इंडिपेंडेंस में, प्री इंडिपेंडेंस में इंडस्ट्रियल लोकेशन जो होती है बेसिकली, इंडस्ट्रियल लोकेशन जो थी, इंडस्ट्रीज लोकेशन was where used to be, it is nearby the coast के पास हुआ करते थे, बिकॉज क्योंकि जो थे भी वो हमारे ब्रिटिश थे ना, इतने अच्छे लोग थे कि वो सारी की सारी फैक्ट्री उन्होंने अपने इधर ही लगाई, क्योंकि वो डायरेक्ट शिप लेके आते थे एंड दे कैरी दैट आवर प्रोडक्ट्स एंड टेक इट अवे टू द, तो उन्होंने पहले वहीं पे सेटअप कर दी, ड्यू टू विच क्या अभी भी बहुत सारे सेटअप अभी गोइंग टू कम ओवर दैट कॉटन इंडस्ट्री पे आएंगे। तो कॉटन इंडस्ट्री से वो वेस्टर्न साइड में बनी थी, वेस्टर्न साइड में गुजरात महाराष्ट्र में बनी थी, तो वो अभी भी वो देयर थिंग आर देयर कि वो अभी भी वर्क करती है वहाँ पे, क्योंकि कॉस्ट, अगर हमने बात करें अवेलेबिलिटी ऑफ रॉ मटेरियल, अब अभी वहाँ पे क्या है, गुजरात महाराष्ट्र में एग्रीकल्चर चैप्टर पढ़ा है आपने भी, तो इफ यू हैव रिमेंबर तो ब्लैक सॉइल है महाराष्ट्र और गुजरात में, ब्लैक सॉइल जहाँ पे वहीं पे कॉटन भी वहीं मिलेगी ना, फैक्ट्री भी वहीं लगा दिया ना, ठीक है। एंड देयर इज आल्सो वर्ड कॉल्ड हिंटरलैंड, ठीक है, एक वर्ड आता है हिंटरलैंड, आपने नेक्स्ट में पढ़ा होगा वो लाइक, ठीक है। हिंटरलैंड क्या होता है, इफ एनीवन नोस, यस हिंटरलैंड पता है किस, hinterland is basically a kind of area, you can say, kind of area, like just take an example here, Mumbai. So Mumbai has a port named as Jawaharlal Nehru Seaport. Okay, it is like okay, so इस port के आसपास, मान लीजिए this is the area which is इसका जो area मतलब एक seaport है, this is basically seaport. तो surrounding areas जो होंगे इसके surrounding areas मतलब the surrounding area which through which it this port actually caters, मतलब ये जो एरिया है ना, ये जो सी पोर्ट के अराउंड जो भी सराउंडिंग एरिया जो भी है, उस एरिया को हम बोलते हैं हिंटरलैंड, क्योंकि ये वाला जो एरिया है दिस प्रोवाइडिंग सर्विस टू दिस एरिया नियर बाय एरियाज। ऑल्दो यहाँ तो सी पोर्ट पे बड़े बड़े वो कंटेनर्स आते हैं, वो और भी लाइक फ्रॉम द रेलवे सिस्टम द कमिंग द कम्स टू आवर लाइक कम्स टू आवर लाइक इन दिल्ली आल्सो। अगर आपको पता होगा, नो द थिंग दैट इफ यू गो एक जंगल चौक से जो रोड जा रहा है ना, हाईवे पूरा पूरा,
that highway will going lead to you know that highway will lead to you the Mumbai. सूरत होता है आपको मुंबई पहुंचा देगा वो हाईवे, आपको पता है? इधर शंकर चौक से पूरा हाईवे जा रहा है आपका, पूरा सिटी सेंटर से पूरा का पूरा हाईवे जा रहा है मान्यता से होते हुए, that highway will lead to Mumbai via Surat. Okay, and what the Indian government has started, okay, Indian government has started here we have Delhi. Okay, दिल्ली है, यहाँ पे पलवल है, पलवल के और यहाँ पे यूपी में दादरी है, ठीक है? पलवल भी नहीं है बल्कि तो इंडियन गवर्नमेंट स्टार्टेड अ थिंग कि वो उन्होंने वेस्टर्न कॉरिडोर, वेस्टर्न फ्रेट कॉरिडोर बनाना स्टार्ट करा। ये सारे ना लाइव एग्जांपल्स है, यू कैन वेस्टर्न फ्रेट कॉरिडोर और ईस्टर्न फ्रेट कॉरिडोर भी है, ठीक है? डोंट लाइक ये सब आपको बुक में नहीं मिलेगा, यू कैन गोइंग टू गेट द थिंग्स इन अ बुक एक्चुअली। वेस्टर्न फ्रेट कॉरिडोर के एक बेसिकली एक रेलवे प्लेटफॉर्म बनाया गया है, रेलवे प्लेटफॉर्म पे रेलवे लाइन डाल रहे नहीं, जो कि शायद लाइक आई यूज्ड टू विजिट ऑन अ मंथली बेसिस आउट देयर लाइक सराउंडिंग एरिया ऑफ दिल्ली। सो क्या अभी तो नहीं जा पा रहे, तो क्या अभी शायद वो रेलवे की पट्टी जो थी वो शायद आधी कंप्लीट भी होगी, और वो कहाँ से स्टार्ट होगा, गुड़गांव को भी कनेक्ट कर रहा है, ठीक है? तो दिस इज द काइंड ऑफ अ थिंग। और ये सब क्यों हो रहा है? बेसिकली वेस्टर्न फ्रेट कॉरिडोर मतलब ये मालगाड़ी की एक रेल की पट्टी डल रही है। मालगाड़ी सुनी आपने? मालगाड़ी पता है? इसमें मोस्टली कंटेनर ही रखे जाते हैं, कंटेनर वाली गाड़ी रेलवेज होती है, वो रेलगाड़ी जो होती है मालगाड़ी से होती है, ठीक है? तो ये जो पूरा वेस्टर्न फ्रेट इधर वेस्टर्न भी चल रहा है और इधर से ईस्टर्न भी चल रहा है, वो आपको वाराणसी इलाहाबाद होते हुए वो करेगा आपको शायद कनेक्ट कोलकाता, दिस इज कनेक्टिंग टू द मुंबई। दो जगह पे चल रहा है, ये पूरी रेलवे लाइन है, न्यू रेलवे लाइन इज बीइंग सेट अप। जो मैंने जितना देखा है वो पूरा पूरा आपका गुड़गांव टू दादरी एरिया वो पूरा कवर कर रखा है, ठीक है? आई नो दैट इट्स एरिया प्रॉपर्ली, सो आई कैन से, ठीक है? पूरा 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 बना चुके। बाकी नीचे से भी काम स्टार्ट हो रखा है, या फिर बीच में से स्टार्ट हो रहा है, यू नो दिल्ली के सराउंडिंग में दिल्ली के आसपास एक रिंग हाईवे बनाया है जिसका नाम पता है आपको? 4 सिटीज को कनेक्ट करता है, पता है किसी को? अगर हम उसको दिल्ली मान रहे हैं, वो उस हाईवे का नाम पता है आपको? नहीं पता तो पता करना। दिस इज एक्टिविटी दैट यू हैव गिवन। बहुत इजी है, बहुत इजी है। और कोई मैप में गूगल मैप पे भी जाओगे ना तो आपको नाम लिखा हुआ मिल जाएगा। मैं आपको एरिया बता देता हूँ कहाँ कहाँ पे आपको ये इसके की पॉइंट्स है, ठीक है? ये पलवल में है, ये गाजियाबाद में है, दिस इज इन कोंडली, ये आपका हरियाणा में, और एक है मानेसर में, ठीक है? ये 3 पॉइंट्स है एक हाईवे के, ठीक है? अगर आप इंडस्ट्रीज को जान रहे हो तो आपको थोड़ी सी मेहनत और करनी पड़ेगी, नाम थोड़ा खिलाऊंगा। बहुत ईजी है, कहीं पे भी सर्च करोगे नाम मिल जाएंगे। कोंडली भी हरियाणा में, पलवल भी हरियाणा में, मानेसर भी हरियाणा, गाजियाबाद एक यूपी में पड़ेगा बस। बाकी सब दिस सेक्शन, क्योंकि दिल्ली वाला सेक्शन यूपी में आता है ना, एंड ऑल ओवर दिस सेक्शन इज कम्स इन हरियाणा। सो दिस इज द सिनेरियो ऑफ द लाइक इंडस्ट्रियल लोकेशन का जो आज हमने करा, इंडस्ट्रियल लोकेशन के बारे में बात करी। अब किसको क्या आया, किसको नहीं आया, किसको कितना सुनाई दिया, जस्ट टेल मी द थिंग ऑफ दैट। ओके, yes, tell me. Now is kind of a discussion type of thing. Tell me, किसको कितना आया, किसको नहीं आ रहा, कुछ भी। Because for today's our topic is over, and just remind me the on the next day, like next day to next week ही है शायद, आज Friday है ना? So on the next day just remind me the thing we have to do is the classification of industry. अगर मैं I just forgot the thing that what we have to start in this class, okay? तो मुझे प्लीज याद दिला देना the classification of industry that we have to do, okay? So tell me the thing what we have done today. Is there any difficulty, any query regarding that thing? Yes, tell me. नो सर, आ गया। आपको वॉइस आ रही है मेरी? सबको आ गया अच्छे से?